اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ رمضان شریف کی 17 تاریخ اور دن اسلام کی تاریخ کا افضل ترین دن اور تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی اہمیت و افادیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس مبارک ماہ میں اس کو ضرور بیان کیا جائے اور سنا جائے، یعنی غزوہ بدر جو روزے کی فرضیت کے بعد اسی سال رمضان شریف کی 17 تاریخ 2 ہجری جمعہ کے دن پیش آیا۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کنواں بہت مشہور تھا اس لیے کہ اس کے آس پاس کی آبادی دیہات کو بھی بدر کہا جاتا تھا۔ یہ دیہات یعنی گاؤں اب بھی موجود ہے اور وہ میدان بھی ہے جہاں غزوہ بدر ہوا تھا۔ خوش عقیدہ مسلمان مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے یا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے بدر میں بھی حاضر ہوتے ہیں کہ یہ باعث ثواب ہے اور اس امت پر ان شہدائے بدر کا عظیم احسان ہے کہ جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا قرآن شریف یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، مسلمانوں کی اپنی ظاہری اور مادی طاقت و قوت نہیں ہے۔ دیکھیے میدان بدر میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں صرف 313 تھے اور دشمن کی تعداد 950 تھی۔ مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، 6 زرہ، 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بکثرت زرہ اور دوسرے ہتھیار موجود تھے اور کھانے کا معقول انتظام تھا، حالانکہ مسلمان روزے سے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فرمایا اور ان کی مدد کی تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کامیابی و کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُوكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہلی مدد اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آنے لگی تاکہ مسلمان دشمن کی کثرت دیکھ کر گھبرائے نہیں، اور قرآن مقدس فرماتا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، انہیں آنکھوں سے دیکھا اپنے سے دونا سمجھے۔ اور دوسری مدد اس طرح ہوئی کہ جنگ کے دوران کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا تھا اور کافروں کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممد لکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ اور تیسری مدد اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی تیسری مدد اس طرح کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ کفار و مشرکین کا 1000 لشکر جرار سیلاب کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان فرمایا تو صرف 313 نہتے اور بے سر و سامان مجاہدین اسلام نے جس جذبہ شہادت اور خلوص و وفا کے ساتھ اس حق و باطل کی جنگ میں اللہ تعالیٰ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر لڑے ہیں، یقیناً آفتاب و ماہتاب نے روئے زمین پر ایسی جانبازی اور شرفروشی کا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ جس بے سر و سامانی کے عالم میں غزوہ بدر کی تیاری ہوئی تو
हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से जंग के सिलसिले में मशवरा किया तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस तरह आप हुक्म दें हम तैयार हैं। हम अपनी जाने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देंगे। हम कौम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं है कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने गुलामों का यह जज्बा देखा तो खुश होकर उनके हक में दुआ फरमाई। मैदान बद्र में जब हक व बातिल का मुआरका शुरू हुआ तो मुसलमानों ने अपने प्यारे रब्बी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जानिसारी और बहादुरी के वह जौहर दिखाए जो मैदान बद्र की जमीन कभी भी भूल न पाएगी। फज़ाए बद्र को एक अब बीती याद है अब तक, यह वाद ये नारे तौहीद से आबाद है अब तक। मैं हूँ अंजुम पे उस मिट्टी के जर्रे मुस्कुराते हैं, ज़बाने हाल से माजी के अफसाने सुनाते हैं। तमाम सहाबा कराम ने इस्लाम पर फिदा होने और अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जान की कुर्बानी का वादा किया। गोया गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहे थे, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहाँ को गर्क कर दे नारे अल्लाहु अकबर में। हमारा मरना जीना आपके अहकाम पर होगा, किसी मैदान में हो खात्मा इस्लाम पर होगा। जंग की रात सब सोते रहे लेकिन कायनात के आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इस्लाम के उन सिपाहियों के लिए फतह कामरानी की दुआ करते रहे। सुबह हुई तो मुसलमानों की सफ़ों को दुरुस्त किया, जंग की तैयारियां मुकम्मल हुई तो महबूबे खुदा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह ताला, अब तेरी उस मदद का वक्त आ गया है जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया है। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल असाबतुल यौम ला तुअबद, यानी ऐ अल्लाह ताला, अगर मुसलमानों की इस छोटी सी जमात को तूने हिलाक हो जाने दिया तो फिर तेरी भी इबादत न की जाएगी, यानी फिर कोई तेरी इबादत करने वाला न रहेगा। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब ताला के हुक्म से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों का लश्कर तुम्हारी मदद के लिए आ रहा है। और अल्लाह ताला का वादा पूरा हुआ। जब जंग पूरे जोर पर आई तो उन फरिश्तों ने अपना काम पूरा किया कि तलवार लगने से पहले सर कटते नजर आ रहे थे। कुछ काफिरों के मुंह और नाक पर कोड़ों के निशान नजर आ रहे थे और यही फरिश्तों को खुदा ताला का हुक्म था। गौर कीजिए कैसी जबरदस्त मदद है अल्लाह ताला की तरफ से कि दुश्मन पर मार पड़ रही है और मारने वाला नजर नहीं आता। इसी तरह वह कुव्वत व कुदरत वाला अपने मोमिन बंदों की मदद करता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशाअ, और अल्लाह अपनी मदद से जोर देता है जिसे चाहता है। जंग बद्र में एक आवाज आ रही थी, अक़दिम हैज़ूम, अक़दिम हैज़ूम, हैज़ूम आगे बढ़ो, हैज़ूम आगे बढ़ो। साहबा कहते हैं कि हम हैरान थे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज़ूम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम है। वह अपने घोड़े को कह रहे थे कि आगे बढ़ो। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हम कितने मरतबा किसी काफिर को कत्ल करना चाहते तो वह पहले ही कत्ल हो जाता। हम समझ जाते कि यह अल्लाह ताला की मदद है। हक व बातिल की इस्लाम की तारीख में पहली जंग है जिसमें मुसलमान बेसरो सामान और लश्कर के मुजाहिदीन की कुल तादाद 313 थी, मगर अल्लाह ताला ने उस कलील जमात को 3 गुना ज्यादा काफिरों के लश्कर पर शानदार फतह अता फरमाई। अल्लाह ताला का ऐलान है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, 12 कम जमात गालिब आई है ज्यादा गिरोह पर अल्लाह के हुक्म से। हजरत अब्दुल्ला इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मैदान बद्र में खड़ा था कि अंसार के 2 छोटे कम उम्र लड़के मेरे पास दौड़ते हुए आए और मुझसे पूछने लगे, चचा जान अबू जहल कौन है और वह कहाँ है। यह दोनों बच्चे मुआज़ इब्न उमर और माऊज इब्न अफरा थे।
حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ تم دونوں ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل لعین بدبخت ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ گویا وہ بچے کہہ رہے تھے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل لعین گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ اس کو قتل کر کے ہی دم لیں گے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان بچوں سے کہا کہ ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کافروں کے لشکر کا سردار ہے، اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے ارد گرد فوج کا دستہ حفاظت کر رہا ہے۔ بچے بولے چچا جان یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بچوں وہ ہے ابو جہل جو لشکر کے بیچ گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہ وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس موجود ہیں۔ بچے چھوٹے تھے اس لیے ان کا ہاتھ ابو جہل تک پہنچنا مشکل تھا، اس لیے بچوں نے سب سے پہلے اپنی تلواروں کا وار گھوڑے کی ٹانگ پر کیا اور گھوڑا چلاتا ہوا زمین پر گرا اور ابو جہل گھوڑے سے زمین پر آیا۔ دونوں بچے نے بڑی تیزی سے اپنی ننھی منھی تلواروں سے ابو جہل کے سر پر حملہ کر دیا، جس سے ابو جہل خاک و خون میں تڑپنے لگا اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو جہل کا لڑکا اکرمہ وار کیا، جس سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا، جس سے جنگ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار دوسری ہاتھ میں لے لی اور جنگ کرتے رہے۔ اللہ اللہ کیا جذبہ تھا، لٹکتا ہوا بازو، اللہ اللہ کیا جذبہ تھا، لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، پاؤں کے نیچے رکھا اور توڑ کر پھینک دیا۔ اس ننھے مجاہد کی اس ادا کو ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پر لگا دیا تو کٹا ہوا بازو کندھے کے ساتھ پھر جڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان دو ننھے عاشقوں اور مجاہدوں یعنی حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیشہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر میں جنگ سے پہلے اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے کہ جنگ کی تیاری مکمل کر لی جائے۔ بدر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کل جب جنگ ہوگی تو میری امت کا فرعون ابو جہل اس جگہ مرا ملے گا اور امیہ بن خلف اس جگہ مرا پڑا ہوگا۔ اسی طرح بہت سے کافروں کے سرداروں کے بارے میں فرمایا کہ فلاں اس جگہ پر فلاں اس جگہ پر مرا پڑا ہوگا۔ ایک دن پہلے ہی ان کی موت کی خبر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ کفار حدود سے ذرا آگے پیچھے نہ تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی۔ اے ایمان والو، جنگیں دنیا میں بے شمار ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر کسی بادشاہ یا لشکر کے سپہ سالار نے جنگ سے پہلے کامیابی اور کامرانی کی بشارت نہیں دی، نہ یہ بتا سکا کہ فلاں دشمن اس جگہ پر قتل کیا ہوا مرا ملے گا۔ یہ شان صرف اور صرف ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ جنگ بعد میں یعنی کل ہوگی اور فتح و کامرانی کا مژدہ پہلے ہی سنا دی اور کون سا دشمن کس جگہ مرا پڑا ہوگا جنگ سے پہلے بتا دیا۔ بعض بزرگوں کی کتابوں میں اس طرح بھی روایت ملتی ہے کہ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے اور میدان کا جائزہ لیا اور ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ کل جب جنگ ہوگی تو ابو جہل مارا جائے گا اور اس کی لاش
इस लकीर पर पड़ी होगी। तो उम्मत का फिरऔन अबू जहल घबराया और अपने साथियों से कहने लगा कि कल मेरी मौत का दिन है, अब मुझे मरने और कत्ल होने से कोई चीज़ बचा नहीं सकती। इसलिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह से जो बात मैंने सुनी है वह कभी गलत नहीं हुई, बल्कि वह बात पूरी होके रहती है। सच कहा गया है, अल फज़्ल मा शहदत बिहिल आदा, यानी हक वही है जिसकी सच्चाई की दुश्मन भी गवाही दे। और जब अबू जहल खाको खून में तड़प रहा था, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, इर्दो गिर्द के उसके साथियों की जमात खड़ी है। उसने मरते मरते सवाल किया, देखो तो मेरा जिस्म उस लकीर पर तो नहीं है जो लकीर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खींची थी। जब साथियों ने गौर किया और देखा तो यकीनन अबू जहल का धड़ उसी लकीर पर था। तो अबू जहल कहने लगा, मेरा धड़ खींचकर या उठाकर उस लकीर से दूर कर दो, ताकि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बात तो झूठी हो जाए। मर रहा है, खाको खून में तड़प रहा है, मगर अदावत और नफरत में कोई कमी नहीं है। उस लाइन के साथी उसे उठाने की कोशिश करने लगे। इधर अल्लाह ताला का हुक्म होता है, ऐ मलकुल मौत सुनो, अबू जहल बदबख्त झूठा है और मेरा प्यारा महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चा है। देरी न करो, रूह कब्ज कर लो। मलकुल मौत ने रूह निकाली। जालिम अबू जहल का जिस्म नारी ठंडा हो गया और उसी लकीर पर लाश पड़ी रही, जो लकीर हो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खींची थी। अल्लाह ताला की अता से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की शान और शौकत का आलम यह है कि जो आप हजरात ने मुलाहिजा किया, मगर मानने और कबूल करने के लिए ईमान का होना शर्त है। खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान होना जरूरी और लाजमी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग के लिए सफ़े सीधी फरमा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आशिक हजरत सवाद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब पहुंचे, उनका पेट कुछ बड़ा था जो सबसे बाहर निकल रहा था। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके पेट पर अपनी छड़ी लगाते हुए फरमाया, ऐ सवाद सीधे खड़े हो जाओ। बस हजरत सवाद ने मौका को गनीमत समझा और अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने मेरे पेट पर जो छड़ी मारी है, मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसका बदला लूंगा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैरत में पड़ गए कि इस मुश्किल घड़ी में सवाद को क्या हो गया है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनते हुए अपना कपड़ा उठाते हुए फरमाया, ऐ सवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लो मेरा पेट हाजिर है, तुम अपना बदला ले लो, उसी छड़ी से मार लो जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची है। हजरत सवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हुए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक पेट को चूमा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से चिमट गए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यह क्या है? तुम तो अपना बदला लेना चाहते थे। हजरत सवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस वक्त मैं मैदान जंग में हूँ, क्या पता मौत का वक्त आ जाए और मैं शहीद हो जाऊं। बस मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से मस हो जाए, यानी छू जाए। अल्लाह ताला ने मुझे यह मौका नसीब फरमाया। मुझे यकीन है कि अब मेरे जिस्म पर जहन्नम की आग हराम हो गई। बस जो मेरा मकसद था वह पूरा हो गया, मैं अपना बदला माफ करता हूँ। ऐ ईमान वालो, यह था साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का ईमान और उनका इश्क जो आप हजरात ने सुन लिया। यानी जो जिस्म आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से छू जाए उसको दोजख की आग नहीं जला सकती। मगर मैं आप हजरात को बता देना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का पैरहन शरीफ या मुँह मुबारक की बरकत और रहमत के हुसूल के लिए मोमिन खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान होना लाजिम और ज़रूरी है। यानी ऐसा मुसलमान हो जिसमें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के इश्क की हरारत मौजूद हो। इसीलिए आशिक सादिक सरकार आला हज़रत
علیہ रहमत व रिजवान तहरीर फरमाते हैं, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वह आग लगाई है। जंग खत्म होने के बाद जो काफिर गिरफ्तार हुए वह बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश किए गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया। किसी की राय यह थी कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए और कुछ लोगों ने यह कहा कि जो काफिर जिसका रिश्तेदार है वही उसको कत्ल करे, और किसी ने यह मशवरा दिया कि फिदिया लेकर उनको रिहा कर दिया जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह मशवरा ज्यादा पसंद आया कि कत्ल न किया जाए बल्कि फिदिया लेकर उनको रिहा कर दिया जाए। उन्हीं गिरफ्तार होने वालों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हजरत अब्बास भी थे। हजरत अब्बास से भी कहा गया कि अगर आप भी आजाद होना चाहते हैं तो 400 दिरहम फिदिया अदा कीजिए और आजाद हो जाइए। हजरत अब्बास ने कहा, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं इस कदर फिदिया अदा कर सकूं। हमारे आका गैबदास नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, चचा अब्बास फिदिया दो और रिहा हो जाओ। मगर हजरत अब्बास ने फिर दूसरी मर्तबा भी यही कहा कि मेरे पास इस कदर रकम नहीं है जो मैं फिदिया अदा कर सकूं। तो तीसरी मर्तबा हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान आप मक्का जाकर फिदिया की रकम भेज दीजिएगा, आपको आजादी का परवाना दे देता हूँ। तो हजरत अब्बास बोले, मेरे घर मक्का में भी कोई रकम नहीं है। तो हमारे हुजूर गैब की खबर देने वाले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह माल कहाँ है जो आते वक्त आपने अपनी बीवी यानी मेरी चची उम्मुल फजल के साथ मिलकर जमीन में दफन किया था, और आपने अपनी बीवी यानी मेरी चची उम्मुल फजल से कहा था कि मैं सलामत आ गया तो ठीक है, वरना अगर जंग में मैं कत्ल कर दिया गया तो यह माल मेरे बच्चों फजल अब्दुल्ला कसम के हवाले कर देना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब की बात सुनकर हजरत अब्बास की आंखें खुल गई और वह कहने लगे कि आज मैंने जान लिया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं, और जो नबी होता है वह गैब का इल्म रखता है, वरना माल को जमीन में दफन करने का मामला मेरे और मेरी बीवी के अलावा और कोई नहीं जानता। आप मदीने में हैं और मक्का में मेरे घर की बात बता रहे हैं जो एक राज थी। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह ताला के सच्चे नबी और रसूल हैं और मुसलमान हो गए। जंगे बद्र में जब नूफिल को कैद किया गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नूफिल से फरमाया, फिदिया दो, रिहाई हासिल करो। तो नूफिल ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फिदिया किससे अदा करूंगा। तो हमारे गैबदा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिद्दा में जो तुमने नेज़े रखे हैं वह फिदिया के तौर पर दे दो, हम तुम्हें आजाद कर देते हैं। नूफिल गैब की बात सुनकर हैरत में पड़ गया और कहने लगा, जिद्दा में मेरे पास 1000 नेज़े रखे हुए हैं, मगर उस राज का इल्म मेरे सिवा कोई नहीं जानता। गोया नूफिल कह रहे थे कि जो मदीना में रहकर जिद्दा की खबर रखे वह झूठा नहीं हो सकता। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के सच्चे नबी और बरहक रसूल हैं और मुसलमान हो गए। जंगे बद्र का वाकया आप हजरात ने सुन लिया। हजरत अब्बास ईमान लाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब देखकर नूफिल मुसलमान हुए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब देखकर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को ईमान वाला और मुसलमान कहते और कहलवाते हैं, दावा भी करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला के महबूब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हैं। अब आप हजरात ही बताइए, क्या ऐसे लोग मुसलमान हो सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। लिहाजा हमें ऐसे बदअकीदा लोगों से दूर रहना है ताकि हमारा ईमान महफूज रहे। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि जब जंग में फतह हो जाती तो 3 दिन मैदान जंग में ठहरते। मैदान बद्र में भी फतह के बाद 3 दिन तक कयाम फरमा रहे। 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मैदान बद्र से रवाना हुए। रात का वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस कुएं के पास तशरीफ लाए जिसमें कुफ्फार कुरैश की लाशें डाली गई थी। कुएं के पास खड़े होकर खिताब फरमाया, ऐ अबू जहल, ऐ उमैया बिन खल्फ, ऐ उतबा बिन रबिया, ऐ शेबा बिन रबिया, अगर तुम लोग अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करते तो आज खुश होते, और जो वादा अल्लाह ताला ने मेरे साथ किया था फ़इन्नी क़द वजदतु मा वअदनी रब्बी हक़्क़न, बस बेशक वह वादा मेरे रब ताला ने मेरे साथ किया मैंने सच्चा पाया।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्हें मरे हुए 3 दिन गुजर गए हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज इनसे बातें कर रहे हैं, मुर्दा जिस्म कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं? तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अंतुम बेअस्मइल लिमा अक़ूल मिन्हु, यानी मैं जो कह रहा हूँ तुम उनसे ज्यादा सुनने वाले नहीं हो। इस हदीस मुबारका से साफ साफ जाहिर व बाहिर हो गया कि मरने और कत्ल होने के बाद काफिर भी सुनते हैं। जभी तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र में कत्ल होने वाले कुफ्फार कुरैश की लाशों से खिताब फरमाया और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल पर फरमाया, ऐ उमर, तुम उनसे ज्यादा नहीं सुनते। इस हदीस शरीफ की रोशनी में मुझे बताना और समझाना यह है कि जब मरे हुए काफिर से बात की जाए तो वह सुनते हैं, तो वह मोमिन जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मरा हो या शहीद हुआ हो, या वह वो अल्लाह का वली जो अल्लाह ताला की दोस्ती के साथ दुनिया से गया हो, अगर उसकी खिदमत में अर्जो मारूज किया जाए तो यकीनन वह अपने कब्र में फरियादी की फरियाद सुनते हैं। और फिर हमारे आका अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत बुलंदो बाला है। इसीलिए तो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, हम यहाँ से पुकारें वह वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर व नज़दीक के सुनने वाले व कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जंगे बद्र में 313 मुजाहिदीन इस्लाम में से सिर्फ 14 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन शहीद हुए। जंगे बद्र में तकरीबन 1000 की तादाद थी लश्कर कुफ्फार की, जिसमें काफिरों के 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अक्सर काफिरों के सरदार थे।